linguistic states. First point, you will write linguistic states. How federalism practiced in India. आपका फर्स्ट पॉइंट, इसके लिए आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स लर्न करने हैं बस, मिक्स नहीं करना। ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चे मिक्स करते हैं। हाउ कैन यू से इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इसके साथ मिक्स कर देते हैं ये क्वेश्चन। हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, ठीक है, डू इट एंड यू विल। वेयर इज अमृतपाल? अमृतपाल, नो यू कैन स्टार्ट। हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, you have done. How can you say India is a federal country? No, today we will do how federalism practiced in India. And for this, you have to learn 3 points. First is linguistic states, then language policy, and then center and state relations. You have to learn these 3 points: linguistic states, language policy, and then center and state relations. So I'm going to explain each and every point. First is linguistic states. In this, you will write about after independence, old states were vanished and new states were created. After independence, old states were vanished and new states were created. This was done so that people speaking same language to live in same state. Listen again. Firstly, we are doing linguistic states. After independence, old states were vanished and new states were created. And this was done. ऐसा क्यों किया गया? This was done so that people speaking same language to live in same state. And only 3 states in our country are culture-based states. They are not linguistic states. They are culture-based states. Jharkhand, Uttarakhand, Nagaland. These are not linguistic states. These are culture-based states. Listen again. After independence, old states were vanished and new states were created. आपको पता है, before independence, Shimla was the capital of Punjab. शिमला वाज द कैपिटल ऑफ पंजाब। तो सारी स्टेट्स इन्होंने, पुरानी स्टेट्स इन्होंने जो थी वो खत्म कर दी, न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड। ऐसा क्यों किया हमारे फेमस ने? सो दैट पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज टू लिव इन सेम स्टेट्स। जैसे हम पंजाबी बोलने वाले, पंजाब है ना, तमिलनाडु, हरियाणवी, हरियाणा है ना, तो यू नो इट वेल। यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ एनी स्टेट। तो दिस वॉज डन सो दैट पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज टू लिव इन सेम स्टेट, ताकि झगड़े ना आए लैंग्वेज बेस पे ना, इसलिए उन्होंने ऐसे किया। ठीक। एंड ओनली 3 स्टेट्स इन अवर कंट्री आर नॉट लिंग्विस्टिक, दीज आर कल्चर बेस्ड स्टेट्स। अब वो कौन सी स्टेट्स हैं? झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड। इज इट क्लियर? 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, नेम culture based states, या name, write any 3 states which are not linguistic. Then you have to write Jharkhand, Uttarakhand and Nagaland. तो I think linguistic state आपको clear हो गया होगा। First point linguistic states, and now the second is, I'm going to repeat it, language policy. Language policy, इस पे 3 marks का क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लेते होते हैं। What do you know about the language policy of India? 5 marks question, how federalism practiced in India, and 3 marks question can be asked, describe the language policy of India. इस पे अकेले पे 3 marks का क्वेश्चन आ जाता होता है। तो लैंग्वेज पॉलिसी, इसमें आप लिखोगे, अब near 22 languages are recognized by our constitution. लैंग्वेज पॉलिसी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? 22 languages are recognized by our constitution. In 1965, when Hindi was made official language, in 1965, when Hindi was made official language, there were clashes. How many languages are recognized by Constitution? 22 languages. And in 1965, when Hindi was made official language, there were clashes in Tamil Nadu. They demanded that with Hindi, English should also make official language.
There were clashes in Tamil Nadu and they demanded that with Hindi, English should also agreed because they didn't want civil war in India that had happened in Sri Lanka. आपको पता है ना श्रीलंका में इसी बात को लेके झगड़ा हुआ था when Tamil demanded that with Sinhala Tamil should also make official language and Sinhala government ignored them because they followed Majoritarianism. You know it well. That's why civil war was श्रीलंका में सिविल वार हुई थी. ठीक है, तो इस वे से आप बताओगे लैंग्वेज पॉलिसी में 22 languages are recognized by the constitution. In 1965 when Hindi was made official language, there was violence in Tamil Nadu. Tamil Nadu में violence हो गई. They demanded to make official language. Our framers were wise and they agreed. क्योंकि सिन्हा and they agreed with Hindi. English was also taken as official language. हिंदी के साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज ले लिया गया. Country. Now, the work of our country is done in both Hindi and English. Now, the work of our country is done both in Hindi and English. States have also given permission to do their state work in their own state language with English. तो ये हमारी लैंग्वेज पॉलिसी. States have also given permission to do their state work in their own state language with English. For example, Punjab का state work in Punjabi and English. Is it clear? Punjab का state work in Punjab and then second language policy you have done. And now come to center and state relation. We are doing how federalism practiced in India. State relations. Yes, Jasleen, your hand is up. Relations were not good. पहले अच्छे नहीं होते थे. There was center and state relations were not good. पहले center and state relations अच्छे नहीं होते थे. There was one political party and that was dominating. There was one political party and that was dominating party. One political party होती थी and that was dominating party. If there were same party in center and state, if there were same parties in there were chances of domination. अगर same party, for example, in center Congress and in state also Congress, then there were chances of domination. If there were same parties in center and state, then there were chances of domination. But if parties were not same in center and state, for example, at present जैसे है, in center we are having state we are having Congress. So अगर parties different होती थी, then there were chances of rivalry. अगर parties different होती थी, तो there were chances of rivalry. Next, but with the coming of coalition government in 1990, but with the coming of coalition government,
1990, coming of coalition government in 1990. 1990 में क्या आ गई? Coalition government. 1991 में question can be asked, but with the coming of coalition government in 1990, this problem has been solved. Now center and state relations have become good. With the coming of coalition government, this problem has been solved. Now center and state relations have become good. There are no chances of rivalry and no chances of domination. Is it clear? Center and state relation? Of federalism practiced in India, we have done linguistic states, then we have done language policy, and then we have done center and state relations. Earlier, center and state relations were not good. One party was ruling party and that was dominating. Agar same parties hoti thi, then there were chances of domination. Agar different parties hoti thi, there were chances of rivalry. But with the coming of coalition government, this problem has been solved. Now center and state relations have become good. There are no chances of rivalry, no chances of domination. So what's coalition? What's coalition government? Write down. आप एक 1 मार्क के लिए इसको भी कर लो. इसको बीच में नहीं लिखना. Only for 1 mark you will note down. Yes, Bisam, what's the problem? Bisam 2 ही है. आप नोट लेना कोई भी, ठीक है. 10 रुपी नोट लेना, सारी लैंग्वेजेस होंगी. 22 languages are recognized by the constitution. ठीक. In 1965, when Hindi was made official language, there was violence in Tamil Nadu. They demanded that with Hindi, English should also make official language. Our framers agreed. Our framers were wise. They agreed because they didn't want civil war in India that had happened in Sri Lanka. Sri Lanka में language को लेके ही झगड़ा हुआ था, and our framers didn't want such type of war in India. They agreed, and that's why official work of the country is done in both Hindi and English. States have also given permission. सारी states थी इंडिया में 28 states है ना, सबको permission दे दी that they can do their state work in their own state language with English. Means English को साथ में लेके अपनी state language में वो काम कर सकते हैं. ठीक है. So this is the language policy of India. ये 3 marks का पेपर में separate पूछा जाता है. या फिर 3 marks में पूछ लेते हैं. What do you know about the center and state relations? Which are the culture-based states? Which are not linguistic states? 1 mark question. Jharkhand, Uttarakhand, Nagaland. फिर next is what do you mean by coalition government? ये question इसमें नहीं आप लिखोगे इस topic को, आपको वैसे आना चाहिए. इसमें आप बताओगे after elections when party that wins cannot show majority to form the government. पॉलिटिकल पार्टी जो जीत जाती है ना, वो मेजोरिटी नहीं शो कर पाती कई बार टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन इट हैज टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज to show majority and to form government. Then it has to join hands with other political parties to show majority and to form government. That is called coalition government. मैं एक बार इसको ऐसे बताती हूँ. इलेक्शंस के बाद अगर किसी पॉलिटिकल, यू नो इट वेल ना, 543 सीट्स इन लोकसभा. तो आफ्टर इलेक्शंस अगर कोई पार्टी मेजोरिटी शो नहीं कर पाती, जीत वो गई. जैसे फॉर एग्जांपल एक बार कांग्रेस को मिली थी जैसे 180 ऐसे कुछ सीट्स है ना, इमेजिन कर लेते हैं, चलो इतनी सीट्स मिले और वो मेजोरिटी नहीं, उसको सबसे ज्यादा वोट्स मिली बट वो विनर नहीं है. उसको फिर मेजोरिटी शो करनी है, मीन्स हाफ से थोड़ी ज्यादा सीट्स उसे चाहिए. देन इट हैज टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू शो मेजोरिटी एंड टू फॉर्म गवर्नमेंट. तो इसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. अंडर मनमोहन सिंह, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे ना हमारी कंट्री के, तो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी. ठीक है. एट प्रेजेंट हमारी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है क्योंकि बीजेपी को अपने आप इनको मेजोरिटी मिली है. इनको दूसरों के साथ हैंड ज्वाइन नहीं करने पड़े थे. तो इस वे से अंडर मनमोहन सिंह देयर वाज कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक. तो कितनी बार बनती है कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया? तो कोलिशन गवर्नमेंट के आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. Center and state relations have become good. Is it clear? So here how federalism practiced in India. You have to learn 3 points only.
First is linguistic states, second language policy, third center and state relations. Next topic is decentralization. What do you mean by decentralization? Write its advantages. What do you mean by decentralization? Write its advantages. Decentralization. What do you mean by decentralization? Write its advantages. Decentralization बताना, उसके advantages बताने हैं. अब इसमें आप एक चीज याद रखना, when, पहले मैं मीनिंग बताती हूँ decentralization का. When some of the powers of center and state are given to local government, that is called decentralization. अब एक मिनट, बीच में से सम गायब कर दो तो अपने आप देखो क्या बन गया. When powers of center and state are given to local government, तो ये तो गलत हो जाना, बिल्कुल रॉन्ग हो जाना. क्या सेंटर एंड स्टेट ने सारी पावर्स लोकल गवर्नमेंट को दे दी? मीन्स हमारा जो मेयर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो ज्यादा पावरफुल हो गया फ्रॉम अवर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर से. तो ये गलत हो जाना है. अगर आप बीच में से सम वर्ड गायब करोगे तो when some of the powers of center and state, सम की इंपॉर्टेंस देख लो आप कितनी है इसमें. When some of the powers of center and state are given to local government, that is called decentralization. मैं इसको ऐसे बोल लूं, when प्रिंसिपल मैम अपनी कुछ पावर्स टीचर्स एंड टीचर्स आगे मॉनिटर्स को दे दें, थोड़ी सी मॉनिटर्स, प्रीफेक्ट्स, मार्शल्स, आप ड्यूटी करते हो ना बच्चे, तो 20 पावर्स बट गई है ना. अगर मैं बोल दूं when प्रिंसिपल मैम give her powers to, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना. give some powers to टीचर्स एंड, आगे टीचर्स किसको शेयर कर लेते हैं? मॉनिटर्स के साथ, प्रीफेक्ट्स, मार्शल्स के साथ. क्यों करते हैं? ताकि काम स्मूथली हो, है ना. जो हायर अथॉरिटी है उसके ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो. लिसन अगेन. when some of the powers of center and state are given to local government, that is called decentralization. अब डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस देखो, आप अपने आप सोचो कि क्या क्या एडवांटेजेस होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम बर्डन कम करती है. मैंने अभी बोला प्रिंसिपल मैम का कुछ हेल्प हो जाएगी अगर वो अपनी पावर शेयर करेंगे, तो उसमें उनका कुछ बर्डन कम होएगा. वो इम्पोर्टेंट मैटर्स को देख सकेंगे स्कूल के. सेम एज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव इम्पोर्टेंस टू इम्पोर्टेंट मैटर्स, क्योंकि उसका बर्डन कम हो गया ना. फर्स्ट पॉइंट यू विल राइट लाइक दिस, इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट, it increases the participation of people in the functioning of government. अब स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों की पार्टिसिपेशन बढ़ती है. आप सोचो एक क्लास में अगर 8 मॉनिटर है, सारी क्लासेस के कितने हो गए, कितने मार्शल्स, तो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन में उन बच्चों की होती है. इट इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. लोगों की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट फंक्शनिंग में बढ़ जाती है. और डेमोक्रेसी तो हाई लोगों का रूल है ना. जितना लोगों के हाथ में पावर्स आएंगी उतना बेस्ट होएगा. नेक्स्ट, इसमें आप बताओगे, इट इनकलकेट्स द लीडरशिप क्वालिटीज अमंग द पीपल. अब मॉनिटर्स, मार्शल्स, प्रीफेक्ट्स जो बनते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज आती है ना. इट इनकलकेट्स द लीडरशिप क्वालिटीज अमंग द सिटीजन्स. लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं लोगों में. नेक्स्ट, it is easy to approach local leaders than central and state leaders. अब हमें कोई प्रॉब्लम आए, हम अपने लोकल लीडर्स को इजीली अप्रोच कर सकते हैं, है ना. हम सीधा सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्टर्स के पास थोड़ा जाएंगे. नेक्स्ट, लोकल पीपल कैन नो देयर प्रॉब्लम्स बेटर एंड सॉल्व देम इन अ बेटर वे क्विक. लोकल पीपल कैन नो देयर प्रॉब्लम्स बेटर and solve them in better way and quickly. लोकल लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स का पता होता है. सोल्व देम इन बेटर वे क्विकली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है. 10th C की प्रॉब्लम्स 10th C के मॉनिटर्स को बेटर पता है. दे कैन सॉल्व देम इन बेटर वे. पहले वो बेटर वे से सॉल्व करेंगे, देन हेड बॉय, हेड गर्ल, उनको नहीं पता कि 10th C की प्रॉब्लम्स क्या है या 10th D की प्रॉब्लम्स क्या है. ठीक है, तो लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स बेटर एंड दे कैन सॉल्व देम इन अ बेटर वे. सो दिस इज अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है,
Listen again, when some of the powers of center and state are given to local government, that is called decentralization. Advantages क्या है? आप अपनी मर्जी से कोई भी बना के लिख सकते हो, आप मॉनिटर्स को दिमाग में लाओ, अपने आप आपको अपने आप ये पॉइंट बनेंगे. reduces the burden of central government, center can pay more importance towards important matters, है ना. सेंटर इंपॉर्टेंट मैटर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकता है, सच एज पॉवर्टी, करप्शन, उनकी तरफ ध्यान सकता है सेंटर का. ठीक है. फिर आप कहोगे इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, इनकलकेट्स लीडरशिप क्वालिटीज अमंग द सिटीजन्स. ठीक है. फिर आप ये भी कह सकते हो कि लोकल पीपल कैन नो देयर प्रॉब्लम्स बेटर एंड दे कैन सॉल्व देम क्विकली. वो उनको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं. इट इज इजी टू अप्रोच लोकल लीडर्स. लोकल लीडर्स को हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं. तो इसीलिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन के ये आप एडवांटेजेस बता सकते हो. अब यहाँ पे आप एक टॉपिक करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आफ्टर 1992, बिफोर एंड आफ्टर 1992. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर 1992, बिफोर एंड आफ्टर 1992. अब इसमें आप पता क्या बताओगे, आप एक लाइन लगाओगे सेंटर में और उसमें आप एक साइड लिख दोगे बिफोर, एक साइड लिख दोगे आफ्टर. बिफोर 1992, दूसरी साइड लिखोगे आफ्टर 1992. बिफोर मैं बोलूंगी, आफ्टर आप खुद करोगे, ऑपोजिट कर देना. बिफोर के पॉइंट्स मैं बोलूंगी, आफ्टर के पॉइंट्स आप खुद बनाओगे. फर्स्ट, इलेक्शंस बिफोर है ना, तो पास्ट टेंस में करेंगे. इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, उधर अपने आप बना दो, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली. अपने आप ऑपोजिट करते जाओ और आपने प्रेजेंट में बताना है. मैं पास्ट में बोलूंगी, आपने प्रेजेंट में आंसर देना है, क्योंकि आप आफ्टर 1992 कर रहे हो और मैं बिफोर 1992 कर रही हूँ. ठीक. मैंने बोला इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, आपने क्या बताना है, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली. अब मैंने बोलना है there was no independent election commission for the state. There was no independent election commission for the state. उधर आप बना दोगे there is independent election commission for the state. पहले नहीं होता था independent election commission for the state. There is independent election commission for the state. Next आप बता दोगे इधर seats were not fixed for women. अब तो आपको पता ही है, सीट्स आर फिक्स्ड फॉर वुमेन. 33% है, मैं अभी बताऊंगी. सीट्स आर फिक्स्ड फॉर वुमेन. सीट्स वर नॉट फिक्स्ड फॉर वुमेन मैंने बोला, आपने कहना सीट्स आर फिक्स्ड फॉर वुमेन. अब मैं बोल रही हूँ सीट्स वर नॉट रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST. ऑपोजिट कर दो, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST. सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST. So this is about constitutional amendments before and after 1992. अब लास्ट टॉपिक जो है ना, that is about, वो भी डिसेंट्रलाइजेशन से लिंक्ड है, that is linked with decentralization. अब उसमें क्या है, अब भी नहीं मैं करवाऊंगी वो टॉपिक. We will do near exams only during revisions, क्योंकि ये टॉपिक आप 6 से करते आ रहे हो. जो अभी रह गया ना हमारा टॉपिक, ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो. है क्या ये टॉपिक, अभी मैं बोलूंगी तो आपने कहना ये तो हमें आता है. लिसन केयरफुली. एक क्वेश्चन कहते हैं बाय 1 गेट 2 फ्री, ऐसे सुना हुआ है ना, बाय 1 गेट 3 फ्री. इसमें ऐसे ही है, मैं एक कराऊंगी, 6 आपको लर्न हो जाएंगे. एक मैं करवाऊंगी, आपको कितने लर्न हो जाने हैं, 6. मीन्स एक क्वेश्चन से 6 आंसर्स बनने हैं. इसमें जो अभी मैं बोलूंगी वो है क्या, इट्स लिंक्ड विद डिसेंट्रलाइजेशन, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट. अर्बन एरियाज में तो हम रहते ही हैं, तो हमें अपनी गवर्नमेंट के बारे में तो नॉलेज होएगी. अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, नोट डाउन, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट एंड रूरल सेल्फ गवर्नमेंट. पेपर में क्वेश्चन आता होता है राइट नोट ऑन अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर पूछते होते हैं राइट नोट ऑन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट. अब इनके आगे पार्ट्स हैं. अर्बन सेल्फ के कौन से पार्ट हैं मैं आपको बताती हूँ, लिसन केयरफुली. सबसे पहले अर्बन सेल्फ के लोअर लेवल पे कौन काम करता है, पहले सुन लो. अर्बन सेल्फ एट लोएस्ट लेवल देयर इज नगर पंचायत.
At middle level there is municipality, and at upper level there is municipal corporation. Lowest level पे कौन है? नगर पंचायत. Middle level municipality, upper level municipal corporation. ये है अर्बन सेल्फ. रूरल सेल्फ में आप डिवीजन कर दो. At lowest level there is village panchayat. At lowest level there is village panchayat, and at middle level there is block smithy, and at upper level there is zilla parishad. Lowest level पे कौन है? village panchayat, then block smithy, then zilla parishad. ई डाल के भी बच्चे कई बार लिख लेते होते हैं. ई से भी ई डाल के नीचे सबसे नगर पंचायत, फिर म्यूनिसिपैलिटी, देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर ई डाल के नीचे विलेज पंचायत, फिर ब्लॉक समिति, देन जिला परिषद. इज इट क्लियर? ये तीनों लेवल्स हैं. अब पेपर में क्वेश्चन या तो कई बार क्या करते हैं, पूछ लेते हैं राइट नोट ऑन विलेज पंचायत, राइट नोट ऑन ब्लॉक समिति. मैंने बोला ना 6 बन गए, 6 क्वेश्चन देखो बन गए, 3 इधर 3 उधर. आपको अगर मैं करवा दूं विलेज पंचायत तो बाकी आपने खुद कर लेने हैं. ठीक है, अपने आप बन जाने आपके. पहले हम करते हैं अर्बन सेल्फ एंड रूरल सेल्फ. मैं अर्बन सेल्फ के पॉइंट्स बोलूंगी, अपने आप आपके रूरल सेल्फ के पॉइंट बन जाने. मींस 8 टॉपिक हैं. अर्बन सेल्फ में आप सबसे पहले क्या बता सकते हो? पहले तो आप वही जो लाइनें मैंने बोली हैं. एट लोएस्ट लेवल देयर इज नगर पंचायत, एट मिडिल लेवल देयर इज म्यूनिसिपैलिटी, एट अपर लेवल देयर इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. नंबर 2 पे आप लिखोगे इलेक्शंस, हेडिंग बना दोगे इलेक्शंस. बहुत इजी सा टॉपिक है ये. इसमें आप बताओगे elections are held after every 5 years to elect the elections are held after 5 years to elect the representatives इसी में ही लिखोगे seats are reserved for SC, some seats are reserved for SC, and some seats are fixed for women. Some seats are fixed for SC, and one third seats are fixed for women. Some seats are reserved for SC and ST, and 1/3 seats are fixed for women. ये आपका इलेक्शंस का बन गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप बताओगे, हाँ इसी में इलेक्शंस में ही बता दो टेन्योर इज 5 ईयर. इलेक्शंस वाले में ही लिख दो टेन्योर कितना होता है इसका, 5 ईयर्स. टाइम पीरियड 5 ईयर्स है, टेन्योर इज 5 ईयर्स. अब नेक्स्ट हेडिंग में आप बता दो नेक्स्ट फंक्शंस. फंक्शंस आप अपनी मर्जी के लिख सकते हो. टू मेक अरेंजमेंट फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, टू प्रिपेयर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, टू मेक न्यू रोड्स, टू रिपेयर ओल्ड रोड्स, टू रन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, टू रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी स्कूल, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें. अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, टू रन अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स. कोई भी पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हो. टू आपको कोई भी 3-4 पॉइंट्स आने चाहिए, बस 3-4, ज्यादा नहीं. नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ इनकम. अब इतना काम करती है तो पैसा कहाँ से आता है, इसमें आप सबसे पहले बताओगे. सोर्सेज ऑफ इनकम में आप बताओगे इट कलेक्ट्स टैक्सेस फ्रॉम पीपल, लोगों से टैक्स लेती है. इट गेट्स ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, इट कलेक्ट्स टैक्सेस फ्रॉम पीपल एंड इट आल्सो गेट्स ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. इससे स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है. सो दिस इज अबाउट अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट. रूरल का आप खुद बनाओगे, सिर्फ ऊपर वाली लाइंस चेंज करनी है, बाकी आपका सेम है. रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की फर्स्ट 3 लाइंस आप चेंज कर दोगे. एट लोअर लेवल देयर इज विलेज पंचायत, एट मिडिल लेवल देयर इज ब्लॉक समिति, एंड एट हायर लेवल देयर इज जिला परिषद, एंड देन रेस्ट ऑफ द आंसर इज सेम. अब मैंने आपको करवाना है सिर्फ विलेज पंचायत,
ग्राम सभा, बाकी आप 5 आंसर्स खुद बनाओगे। जैसे अभी आपको रूरल से अर्बन से रूरल बनाना आया, सेम एज मैं कल आपको विलेज पंचायत करवा दूंगी, बाकी सबके हेड बता दूंगी, सिर्फ आपने हेड को चेंज करना है हर एक में। इज दैट क्लियर? टाइम इज ओवर स्टूडेंट्स एंड